Hello and welcome to another inspiring episode of the CSR Times podcast, Leading with Impact. I'm your host, Shabnam Asthana, and today I'm truly delighted to host a very remarkable personality and a change maker, Mr. Surendra Kumar. He is the founder, executive director of Punk, true to its uplifting name, has been spreading wings of change across India with its powerful motto, Chalo kuch acha karte hain. Over the years, the organization has become a beacon of sustainable community development, working tirelessly across 12 plus states and under 7 key pillars of sustainability, from healthcare and livelihood to education, women's empowerment, and environmental stewardship. Mr. Kumar's journey is a fascinating one, from navigating government schemes and corporate CSR collaborations to building grassroots models that have real, measurable impact. Under his leadership, Punk has earned accolades such as being listed among the top 20 NGOs to work for and recognized by Great Place to Work for 2 consecutive years, a testament to the organization's people centric culture and commitment to excellence. In today's conversation, we'll explore the heart behind the mission, what inspired this movement, how impactful initiatives like the SBI Sanjeevani Clinic on Wheels project are transforming rural healthcare, and how data driven innovation and empathy driven leadership are shaping the future of CSR implementation in India. We'll also talk about his views on sustainability in agriculture, the Clean Noida initiative, women's empowerment through Punk's Unnati and Garima programs, and his personal reflections as a leader and individual. So stay with us as we deep dive into the story of Punk, its vision, its impact, and the man who believes in doing something good, not just as a slogan, but as a way of life. Welcome to the show, Mr. Surendra Kumar. It's a pleasure having you with us today. Thank you, So, ma'am. Surendra, let's begin Yeah. with your journey and your inspiration, your tagline, Chalo kuch acha karte hain. This Yeah, ma'am. beautifully captures your spirit. What inspired you to start Punk, and what was the turning point that made you dedicate your career to sustainable community development? Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me for this podcast. If I can begin with my journey, I belong with a very small town. I'm I'm belong with the one small city named Bikaner of Rajasthan, and from there I went for the study through the ICR in BSc Agriculture from the Hyderabad. And during my journey, I realized like right opportunity with the right information and institutional support is needed to sustain the any growth path. अगर हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी में सब बोलते हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाहिए, सब सजेस्ट करते हैं लेकिन करता कोई नहीं है. अगर हम बात करें कि हमारी आज की जो जनरेशन है उसमें करना तो सब चाहते हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है कि आपका एक फोकस पाथ नहीं हो पाता है. तो मैं अगर बात करूं कि हमने 2015 में पंख रजिस्टर किया था. ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ ऐसे गैप्स जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोसाइटी में, आइदर वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, आइदर एजुकेशन से रिलेटेड हो, आइदर हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हो. हम अगर बात करते हैं इंडिया जो है एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्री, लगभग 60% पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. तो काफ़ी जो एग्जिस्टिंग गैप्स है उसको कैसे हम सिस्टमेटिक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करते हुए कैसे हम
कम्युनिटी को समझते हुए इनोवेशन प्लान करें और एक टाइम बाउंड मैनर में कैसे हम उन गैप्स को एड्रेस करें। उन सब के लिए हमने पंख एक प्लेटफॉर्म बनाया। अगर हम बात करें पिछले 10 साल में हमने लगभग 12 स्टेट में काम किया है। बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट पे हमने फोकस किया है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के लिए बैठने की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे देखेंगे तो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है वो डिसबैलेंस है। तो उनको कैसे हम एक छोटी सी इनोवेशन जैसे स्मार्ट क्लास रूम डेवलप करके बच्चों को ट्रेनर जो वहाँ पे टीचर है उसको हम कैसे एक अच्छा ट्रेनिंग दे सके ताकि कोहिजन डेवलप हो सके। हमने जो एसएचजी की वुमेन है उनके लिए ऐसे मॉडल हमने तैयार किए जिससे न कि वो एक ग्रुप को सस्टेन कर सके, साथ में वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो उनको पुश कर सके नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट करने के लिए। जैसे आपने कहा था कि एसबीआई संजीवनी के माध्यम से हम अभी 3 रिमोट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स पे काम कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, उत्तर प्रदेश में बहराइच एंड बलरामपुर, और एक डिस्ट्रिक्ट जो है उधम सिंह नगर में। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे और ऐसे गांव हमने सेलेक्ट किए जहाँ पे मतलब डॉक्टर नहीं जाते हैं, बहुत रिमोट है। वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन, थारू कम्युनिटी, बोक्सा कम्युनिटी, वहाँ के वो लोग हैं और जहाँ पे हम हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर कर रहे हैं और अराउंड 60,000 प्लस पॉपुलेशन को हम प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी टीम जो है डेडिकेटली उनको सपोर्ट कर रही है। साथ में हम वहाँ पे जो अदर चैलेंजेस है जैसे पानी कंटामिनेशन का इशू है या एजुकेशन की कंडीशन वहाँ पे सही नहीं है, तो उस पर भी हम अदर पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ में काम कर रहे हैं। अगर हम मैम देखेंगे कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, इंटेंशन सभी का है कि हम कुछ इस तरीके से प्लान करें। जैसे सब कहते हैं कि एनजीओ है, एनजीओ को काफी लोग पॉजिटिव सेंस में लेके जाते हैं, काफी लोग उसको अदर मैनर में लेके जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए अगर अपने एफर्ट लगा रहा है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं अभी लगभग 14 स्टेट में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट इश्यूज पे काम कर रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे पंख में लगभग 120 से ज्यादा स्टाफ है, उनको सैलरी जा रही है, ऑनरेरियम जा रहे हैं और कम्युनिटी को कम से कम भी नहीं तो हम 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी पीपल को हम एड्रेस कर रहे हैं। एक छोटा सा एफर्ट है जहाँ पे मेरी एज ग्रुप में सब जॉब के पीछे भागते हैं। एक प्रयास है कि कैसे हम कम्युनिटी को सस्टेन कर सके, एक एंटरप्रेन्योर मोड पे हम जा सकें। उससे क्या होगा, जो हमारे सोसाइटी में काफी इशू जो एग्जिस्ट करते हैं उसको हम एक सही डायरेक्शन के साथ में रिजोल्व कर पाएंगे और सस्टेनेबिलिटी के साथ में उसको हम हैंडल कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि इंसान के दिमाग में होता है कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन उसको एक्चुअली कैरी आउट करना, और वो भी जो आपने कहा रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स, एनजीओज, कॉर्पोरेट सीएसआर प्रोजेक्ट्स 8 स्टेट से ऊपर आपने किया हुआ है इनके साथ। तो अगर देखते हैं अपनी जर्नी को, तो आपके चैलेंजेस क्या थी और आपने क्या सीखा वो सबसे? आपके इनिशियल चैलेंजेस, आपने क्या उसको कैसे ओवरकम किया और क्या आपने आगे के लिए सोचा कि हम इसको कैसे टैकल करें? जी मैम, अगर हम देखते हैं कि इनिशियल फेज में चैलेंजेस, जब हम कोई भी काम बिगिन करते हैं तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे अगर हम गांव में काम कर रहे हैं तो हमें कम्युनिटी के साथ में कोहेजन डेवलप करना है। गवर्नमेंट जो बॉडी है उसका क्या वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, जो फंडिंग पार्टनर जैसे कॉर्पोरेट सीएसआर के प्रोजेक्ट की बात करें तो कॉर्पोरेट पार्टनर है, तो सबका जब तक कोहेजन नहीं होगा, ये सबसे चैलेंजिंग एनजीओ लाइन में यही होता है कि इन सब तीनों सिस्टम का एक कोहेजन डेवलप हो सके, एक ऐसा मॉडल हम डेवलप कर पाए जिससे हम वहाँ के एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पाए, वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको सस्टेन कर पाए और इकोनॉमिकल वैल्यू को सस्टेन करते हुए हम आगे लेके जा पाए। पिछले मैम अगर मैं बात करूँ, पिछले जो मेरा जर्नी रहा है
लगभग मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में। मैं खुद भी NID हैदराबाद से पास आउट हूँ। मैंने अगर देखेंगे तो मैं जैसे सर्प एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आंध्रा में है अभी, वो SHG पे काम करती है। केरला की एक एजेंसी है कुडुमश्री, काफी इंटेंसिवली SHG मॉडल पे काम कर रही है। अगर हमें सोसाइटी पे, अगर हमें कम्युनिटी को डेवलप करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वो प्रोग्रेसिव बने, तो हमें पीपल इंस्टीट्यूशन को ट्रेन करना पड़ेगा। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वहाँ पे किस टाइप का प्रॉब्लम है। हमें समझना पड़ेगा, उसका जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि क्या क्या इश्यूज है, और उसको एरिया स्पेसिफिक हम कैसे प्लान कर सकते हैं। जो भी हमारे जो एरियाज है मैम, इन एरिया में हमने काफी चैलेंजेस आते हैं। मतलब लर्निंग भी होती है, हमें काफी डी लर्न भी करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा मैं बोलूँगा कि जो स्टेक होल्डर्स कोलाबोरेशन जब तक हमारा अच्छा नहीं होगा, जब तक हम एक रिजल्ट जो हम सोचते हैं कि इम्पैक्ट, एनजीओ लाइन में होता है कि हम आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट की बातें करते हैं। तो इसको हम जब भी सस्टेन कर पाएंगे जब हम तीनों सिस्टम को हम कोरिलेट कर पाएंगे और टुगेदरली हम उसको आगे पुश कर पाएंगे। तो मेरा यही दूसरा सवाल यही था, लेकिन आपने काफी कुछ हद तक वो जवाब दे दिया है कि आप 12 से ज्यादा स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं, आपने 14 कहा। तो उसमें जो इतने डाइवर्स एरियाज हैं, हेल्थ केयर है, एनवायरनमेंट है, लाइवलीहुड है, इनको सबको एक कोहेसिव जो बोलते हैं मिशन, कैसे आप उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं इतने सारे डाइवर्स एरियाज को? ये तो बहुत ही मुश्किल होगा ये टास्क। या मैम, एक्चुअली मैम अगर हम बात करते हैं, हर एरिया का मतलब अलग अलग चैलेंजेस होता है। हमने 7 पिलर्स जो बनाया है उसके पीछे भी काफी हमारा 10 ईयर का एक रिसर्च है। अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे भी, जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे अगर आज की अगर फंडर की बात करते हैं, जो पार्टनर्स हमारे, उनका भी एक स्पेसिफिक थीम है कि किसी को एजुकेशन पे करना है काम, किसी को हेल्थ पे करना है, किसी का ये होता है कि हम वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, कोई एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। ये तो एक कंपोनेंट को हम पुश किया, उसको मोटिवेट किया। लेकिन अगर हमें वहाँ के किसी कम्युनिटी को अगर हमें सस्टेन करना है, तो हमने मैम 7 पिलर्स का एक मॉडल डिजाइन किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है, जो SDG को डायरेक्टली कोरिलेट करता है। जिसमें पहला पिलर हमारा है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अगर हम किसी भी जगह काम करते हैं, जैसे अगर हम किसी एक विलेज पे काम कर रहे हैं, तो जब तक हमारा वहाँ पे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन का अगर प्लानिंग नहीं होगा, तो हम एग्रीकल्चर और स्किल पे हम काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड पिलर में हमारा ये है कि कैसे हम एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि वहाँ का जो हमारा नींव है एग्रीकल्चर और एलाइड सेगमेंट, उसको हम मजबूत कर सकें। थर्ड पिलर अगर हम देखते हैं हम कि जो एग्रीकल्चर में और एलाइड एक्टिविटी में जो गैप है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड एनहेंसमेंट का एक प्लान किया है, ताकि उन गैप्स को इसके थ्रू हम ब्रिज कर सके और एवेन्यूज जनरेट कर सके जो एम्प्लॉयमेंट और अदर मार्केट सपोर्ट को प्रमोट कर पाएगा। इन सबको करते हुए हमने सारी ये 3 चीज कर दी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि लोगों का जो रुझान है, बिना एजुकेशन के हम उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, विजन नहीं दे सकते। तो एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। तो हमारा 4th पिलर जो है वो एजुकेशन है। इसके माध्यम से हम ट्रिगर करते हैं, जैसे अगर हम बात करें अभी इंडिया में हाइजीन एक इशू है, गार्बेज मैनेजमेंट छोटी सी बात है कि हम अपने घर में अपना कूड़ा जो है अलग अलग करके हम जो कूड़े वालों को दें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब मिक्स करते हैं, कूड़े वाले को देते हैं, कूड़े वाला भी मिक्स को फिर डंपिंग। हम देखते हैं जैसे दिल्ली में देखता हूँ, गाजीपुर है, वो यहाँ पे पूरा पहाड़ बना हुआ है, और आने वाले टाइम में अगर हमारा यही बिहेवियर रहा तो कई ऐसे पहाड़ बन सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, न कि इसमें एजुकेशन हम सब्जेक्ट मैटर, जबकि बिहेवियरल, एनवायरमेंटल, वो सारी चीजें। इससे क्या होगा, हमारा जो एक जो थॉट है वो लोगों तक पेनिट्रेट होगा। हम पेरेंट टीचर मीटिंग प्रमोट कर रहे हैं, एक टॉक डेवलप कर रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, बातचीत होगी लोगों में, एक समझ डेवलप होगी, कैसे कि अपने अपने गांव को क्लीन किया जा सके, कैसे हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर सके।
हमारा में फिफ्थ पिलर अगर हम देखेंगे तो हेल्थ एंड सैनिटेशन है। कोविड के बाद हमने रियलाइज किया, सबने रियलाइज किया है कि अगर हेल्थ और सैनिटेशन कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको सिस्टमेटिक जब तक हम नहीं करेंगे, बेसिक हाइजीन प्रमोट नहीं करेंगे, बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे वो हमारा टॉयलेट का हो, जब तक हम अपने आप को, क्योंकि अगर हम सब कुछ कर लिया, हमने स्किल भी ले ली, हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, पैसे भी आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, जो हम सिटी में देखते हैं, हमारा अगर दिल्ली में देखते हैं तो AIQ कितना हमारा एक चैलेंजिंग फैक्टर है। जो गांव में होगा उसका AIQ बहुत अच्छा होगा, तो उनका हेल्थ का डिफरेंशिएशन बहुत है। तो हेल्थ और सैनिटेशन का हमने प्लान किया 5 पिलर पे। छठा पिलर देखेंगे तो मैम, इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे विलेज लेवल डेवलपमेंट कमेटी बने, फार्मर्स है तो फार्मर्स के FPO बने, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वुमेन है तो SHG मॉडल्स, इन सबको क्लब किया जाए, ताकि क्या होगा, एक सिंगल विंडो अप्रोच डेवलप की जा सके, ताकि पूरा सिस्टम सस्टेन हो। कोई प्रोजेक्ट 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, उसके बाद में वो सेल्फ सस्टेन कर पाए। वो जब भी कर पाएगा जब ऐसे इंस्टीट्यूशन रहेंगे, वो एक्टिवली काम करेंगे। और मैम 7वां और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमने सब कुछ किया, लेकिन बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन के अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा होल पूरा सिस्टम चलेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट स्कीम के साथ में कन्वर्जेंस, प्राइवेट पार्टनर्स के साथ में कन्वर्जेंस, जो वहाँ की कम्युनिटी है उसके साथ में, ताकि एक उसको कन्वर्जेंस के साथ में पूरे सिस्टम को रन किया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसमें साथ में इनोवेशन, टाइम टू टाइम जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही है, इनोवेशन, लर्निंग, री लर्निंग, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मैम ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हमने 7 पिलर्स मॉडल बनाया है, और ये हमने काफ़ी जगह ट्राई भी किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमें कही हैं, और सब ये जानते हैं, लेकिन एक बार आपने जो बोला तो फिर हमें सोचने पे ये मजबूर किया कि हाँ, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो 7 पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि बंक has been named among the top 20 NGOs to work for, and it has been recognized as, the great place to work for 2 consecutive years. It is truly commendable. How do you build this culture of compassion, innovation, accountability within your organization? ये मैम, अगर हम कहीं भी बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री का स्ट्रेंथ होता है उसका मेन पावर। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेन पावर एक स्ट्रेंथ है। जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना हम डिस्कस करेंगे, आजकल क्या हो रहा है, कम्युनिटी डिस्कस नहीं हो रहा है। एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो बेस्ट सोल्यूशन हम निकाल नहीं पाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, हम कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई भी कभी भी हम बेसलाइन स्टडी करते हैं, तो जो भी टीम जाती है ग्राउंड पे डाटा कलेक्ट करने के लिए, उनसे हम एक प्रेजेंटेशन करवाते हैं ऑफिस में। वो डिस्कस करते हैं कि हमने ये डाटा लिया, यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं। जो नीड असेसमेंट होता है उसको पूरा इवैल्यूएट करते हैं, सब अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ, इन सबको कैसे हम एक प्लान मैनर में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इम्प्रूव करेंगे। और वो सारी चीजें टीम के साथ होती है। जो बेस्ट आइडिया होते हैं उनको हम एप्रिशिएट भी करते हैं, उनके लिए रिवार्ड भी होता है, और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैम ये डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी बार हमें फेलो भी मिलता है। कई बार ये होता है कि हम जो सिटी में प्लान कर रहे हैं गांव में वो नहीं होगा। काफ़ी बार होता है कि 2 स्टेट के विलेजेस भी अलग अलग होते हैं, उनका कल्चर, उनका प्रैक्टिस सारे अलग अलग होते हैं। तो टीम का मैम हम कोशिश करते हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम करते हैं टीम को पूरा एंगेज करते हैं। वी बिलीव लाइक इफ वी हैव गुड ह्यूमन रिसोर्स, सेंसिबल ह्यूमन रिसोर्स, then definitely you can grow, you can able to achieve anything। इसीलिए हमने, अगर हम बात करते हैं पंख के लोगों के नीचे में 4 कंपोनेंट है। पहला है अंडरस्टैंड। कुछ भी काम करने के लिए हम सब उसको समझते हैं, ऐसे ही हम किसी को कमिट नहीं करते, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद सपोर्ट डिजाइन करते हैं। सपोर्ट डिजाइन करने के बाद में फिर एम्पावर,
कि उसको एम्पावर करना है, सपोर्ट करते हैं, फिर एम्पावर करते हैं, और फिर सस्टेनेबिलिटी के लिए पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं। तो जो 4 वैल्यूज है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। और हमारा एक ऑब्जेक्टिव है मैम कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस अर्थात हम सोल्यूशन देखें। हमने मैम जैसे क्लीन नोएडा में हमने काम किया, हमने लोगों को काफी बहुत हमने 5 सूत्र डेवलप किए लोगों के लिए। लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट बहुत है, बदबू आती है, तो उसको कैसे हम दूर करेंगे। तो हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि आप सिर्फ ये बात है कि 5 सूत्रों पे काम करना है। पहला, जो हमारा पहले का कल्चर था कि हम एक थैला, जो कपड़े का थैला है, वो मार्केट लेके जाए, जब भी जाए एक थैला कैरी करे। उससे क्या होगा, प्लास्टिक जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम लेके आते हैं वो रिड्यूस होने लगेगी। एक प्लास्टिक के लिए एक रेस्पॉन्सिव बिहेव जनरेट होगा। दूसरा हमें काम करना है, जो भी प्लास्टिक या ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है घर में, उसको अलग अलग करके कूड़े वाले को देना है, कहीं फेंकना नहीं है, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको देना है। तीसरा, हमें कोशिश करना है कि जितने भी जो कहेंगे कि मतलब ये कहेंगे कि जितना भी जो हमारा कम्युनिटी है, प्लान करना है, कम्युनिटी के साथ में डिस्कस करना है। अगर कोई सपोज करते हैं 10 घर उसको दे रहा है, गाड़ी वाले को दे रहा है, 2 घर नहीं दे रहे, तो उनको एक पीर प्रेशर के थ्रू उसको कंट्रोल करना है। इससे क्या होगा, इससे वो जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि गार्बेज मैनेजमेंट अगर देखें तो एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ये पूरा सोसाइटी, पूरा सिटी उसका प्लान है। जैसे हम इंदौर की बात करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अगर वो काम कर रहे हैं, तो आज उनका नाम है, वो एक जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें वो नंबर 1 रैंकिंग पे है, इसी वजह से। और साथ में ऐसे टॉक होने चाहिए। हम सेलिब्रेट करते हैं, हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा, होली, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। हमें ऐसे भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसमें जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए। ऐसे रियल हीरोज को हम प्रमोट करें, तो उससे क्या होगा कि ये सब चीजें एड्रेस हो पाएगी। और ऐसे में काफी मॉडल है जिसके साथ में हम चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें दिखा था आपके वो क्लीन नोएडा इनिशिएटिव में, where you not only managed waste but you also engaged 70,000 residents and reduced nearly 70,000 kg of CO2 emissions. So इसका biggest takeaway क्या था? क्योंकि ये बहुत बड़ा community participation project था, तो आप इससे क्या सीखने को मिला आपको? Because the successful project has done a lot for the environment. तो इससे क्या आपको टेक अवे मिला, क्या आपको सीखने का मौका मिला इस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट से? मैम अगर इसमें देखें हम, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्यूशन भी है। अगर हम बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, साथ में माइग्रेंट भी बहुत है। यहाँ पे सब डे टू डे लाइफ में वेस्ट से रिलेटेड, जैसे अगर हम जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो साइड में कूड़ा पड़ा हुआ है, उसको वो फील कर रहे हैं। लेकिन होता है कि जब तक उनको एक पुश नहीं मिलता है, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने एक पुश दिया। हमने मीटिंग्स की विलेजेस में, लोगों को एक कमिटी के अंदर लेके आए, और हाउस होल्ड जो थे उनको चिन्हित किया गया कि कहाँ पे ये हाउस होल्ड है जो कूड़ा फेंकते हैं, या ऐसे हाउस होल्ड को जो सेग्रीगेट करके दे रहे हैं। तो जो सेग्रीगेट करके दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने लगे कम्युनिटी में, और जो कूड़ा फेंक रहे हैं उनको इनडायरेक्टली ये मैसेज जाने लगा कि नहीं, वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। और सिमिलरली फिर हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी हो गए, जो सफाई वर्कर है, वो उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनके साथ में हमने काम किया, अवेयरनेस ड्राइव किया, कैसे इनका जो प्रोसेस को और स्मूथ किया जा सके। सिमिलरली जो लोग हैं उनको इतना जागरूक किया ताकि जो नुक्कड़ पे गार्बेज बनने पॉइंट होते हैं, चाहे कूड़ा फेंका जाता है, उसको वो कंट्रोल कर सके, या उनको वो चिन्हित करके हम सब मिलके उसको हमने ब्यूटीफाई किया। कहीं पे हमने अच्छा पेंटिंग बनाया, कहीं पे हमने उसको कुछ प्रोसेस के थ्रू डेवलप किया, और कम्युनिटी की ओनरशिप में।
तो इससे क्या हुआ कि जब तक हम कम्युनिटी को साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि चेंज जो है लोगों से ही आना चाहिए, हम चेंज को थोप नहीं सकते हैं। हमें लोगों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ट्रिगर करना पड़ेगा, और उनकी ट्रिगरिंग से ही जो उनका रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर निकल के आएगा, वही पूरे इकोसिस्टम को सस्टेन करेगा। और यही रीजन था मैम कि हमारा जो इस प्रोजेक्ट का जो पंचसूत्र थे, इसमें एक कंपोनेंट था जन जागरूकता। उसमें हमने मास लेवल पे कम्युनिटी मीटिंग्स की, उनकी कमिटी बनाई, उनको इंगेज किया हर स्टेप पे, और उनके जो लीडर्स थे उनको प्रमोट किया, मोटिवेट किया, और वही उनकी वजह से ही, पूरे जो कंसेप्ट है उसकी वजह से ही हम 70,000 लोगों तक पहुंच पाए, और मैं बोलूँगा 70,000 प्लस लोगों तक पहुंच पाए। और लगभग हमने 150 से ज़्यादा जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट थे उनको ब्यूटीफाई किया। आप काफ़ी जगह देखेंगे वहाँ पे दीवार को हमने पूरा ब्यूटीफाई कर दिया। अब लोग डरते हैं वहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए, सोचते हैं कि यार गंदा हो जाएगा। और ये एक छोटा सा प्रयास था मैम, और कहते हैं ना, जब तक एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब तक दूसरा हाथ नहीं मिलेगा। तो कुछ भी करने के लिए कम्युनिटी का रिस्पॉन्स, कम्युनिटी की ओनरशिप बहुत जरूरी है, और हमने पूरे इस प्रोसेस में ये ध्यान में रखा और उसको अपने प्रोजेक्ट के साथ में कोलैबोरेट किया। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम अक्सर देखते हैं ऐसा कि हमें बहुत इच्छा होती है कि हम ये करें, हम वो करें, लेकिन अगर हमें वो सही सपोर्ट न मिले तो वो चीज, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, द इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस नाउ टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड। आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, and your background in monitoring, evaluation, data administration is very impressive. How does data help you to design more effective interventions? And how can other NGOs use data beyond just compliance reporting? क्योंकि हम जानते हैं कि compliance reporting mandatory है, लोग data use करते हैं, but उसके अलावा हम क्या और कर सकते हैं? आपका क्या मैसेज है या क्या आइडियाज है जो आप दूसरे एनजीओस को बोल सकते हैं अबाउट डेटा? तो मैम, डाटा एक पहला सीढ़ी है। जब कभी हम कहीं पे भी प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ का एक स्टडी करते हैं, क्वेश्चनर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर हम जो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम का रूट कोज क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, टीम को ट्रेन करते हैं जो वहाँ पे काम करने वाली है, जो मॉनिटर करने वाली है, और उस पूरे प्रोसेस के साथ में हम इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं कि कौन सा इंटरवेंशन कब करना है। ट्रिगरिंग पॉइंट एक्टिविटी हम करते हैं, एंट्री पॉइंट एक्टिविटी प्लान करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी को कैसे हमें ट्रिगर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब हम कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं तो लोगों को ओनरशिप नहीं आती। लोग सोचते हैं ये तो आए, इनको बेनिफिट हो रहा है इसलिए वो काम कर रहे हैं। उनका पार्टिसिपेशन सिलेक्शन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक वो सारा हम कम्युनिटी को एंगेज करते हैं। उससे क्या होगा, ओनरशिप आती है, और ओनरशिप धीरे धीरे जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं एक टू वे कम्युनिकेशन को जनरेट करती है। जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो जहाँ पे हमारे अच्छे पॉइंट डिस्कस होते हैं वहाँ पे चैलेंजेस भी डिस्कस होते हैं, और उससे क्या होता है कि हम एक सॉल्यूशन को प्लान कर सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं जो पहली बारी में जुड़ते नहीं है वो आगे निकल के आते हैं, और रियल में जो रियल बेनिफिशियरी है उनको हम कैटर कर सकते हैं, उनको बेनिफिट दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं फार्मर्स के साथ में हमने काम किया, हमने लैंडलेस जो फार्मर उनके साथ भी काम किया। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे एक लोकेशन था छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे हमने लैंडलेस फार्मर्स के साथ काम किया। उनका इशू था कि वो माइग्रेट होना पड़ता था उनको, क्योंकि उनके पास वहाँ पे काम नहीं, एग्रीकल्चर नहीं है तो ज़्यादा उनके पास काम नहीं है, और सीजनल उनके पास काम रहता है। तो उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा सपोर्ट करके हम क्या करें। तो हमने 2-3 मॉडल प्लान किए, जिसमें एक मॉडल पे मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमने उनके बैकयार्ड जो एरिया था वहाँ पे 20 लेमन के प्लांट लगाए। ऐसे करके 100 घर थे तो 100 घर में हमने 20-20 लेमन के प्लांट लगाए। वो वेराइटी ऐसी थी जिसका प्रोडक्शन लगभग 30 से 40 केजी
था और लगभग 1 साल के बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट था। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें कि अगर 1 केजी लेमन का उस टाइम पे मार्केट का रेट था 40 रुपीज़, अभी ज़्यादा है, हम दिल्ली में हैं, ज़्यादा हम देते हैं, तो वहाँ पे 1 केजी लेमन का 40 रुपीज़, तो 20 प्लांट थे, एक की कैपेसिटी है लगभग 30 से 40, अगर हम 30 भी पकड़े तो 30 इंटू 20 मतलब 600 केजी लेमन लैंडलेस फार्मर के यहाँ पे हो रहा है। और अगर 600 इंटू 40 करते हैं तो लगभग 20,000 से ज़्यादा इनकम पर ईयर उनको होने लगी। उससे वो गोटरी करने लगे, पोल्ट्री करने लगे, किसी ने अपनी सिलाई मशीन खरीदी। तो एक छोटा सा एक आइडिया, उससे एक पूरी चेंज को हमने जनरेट किया। या तो हम यही उनको बोलते कि आप माइग्रेट हो जाओ, या उस सॉल्यूशन को हम डिस्कस किया, प्लान किया, और ऐसा प्लान जो सस्टेनेबल है। और आज वो फैमिली सस्टेन कर रही है और मल्टीपल एंटरप्राइज के साथ में मल्टीपल इनकम ले रही है। जी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो बहुत है। तो आपने शुरू में बताया कि आपको 15 साल हो गए इस फील्ड में, जी 15 मैम, इयर्स। या तो मैम, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि यू हैव बीन बोथ अ प्रैक्टिशनर एंड अ लीडर इन सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन। तो जी मैम। आपको पंख के लिए क्या विजन है, और आपने इंडिया का जो सीएसआर लैंडस्केप है उसमें आपने, जब आपने शुरुआत की और अभी तक का सफर जो आपका रहा, उसमें आपने कुछ चेंजेस ऐसे देखे जो आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में, और क्या और होना चाहिए अपने सीएसआर फील्ड में, इंडियन सीएसआर फील्ड, फ्रॉम द टाइम यू बिगैन टिल जी टुडे? मैम, अगर हम देखें बिगिनिंग से पहले देखते थे तो पहले इधर छोटे प्रोजेक्ट मिलते थे, एक विजन नहीं था, मतलब एक स्पेसिफिक डोमेन। एजुकेशन में हम एनएफई हमने कर लिया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे हमने बच्चों को कर दिया, या मिडिल क्लास से कर दी, उनको एनरोल करवा दिया। ये एक छोटे छोटे विजन के साथ था। अभी अगर हम देखें तो अभी थोड़े से लॉन्ग विजन के साथ में 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऐसा सीएसआर करने लग गए हैं। अगर हम देखें मैम, कहीं पे भी अगर हमें चेंज लाना है तो मेरी प्लानिंग विलेज लेवल पे नहीं होनी चाहिए, मेरी प्लानिंग होनी चाहिए स्टेट लेवल पे। जो कंट्री की अगर हम बात करें, कंट्री में जो हमारी गाइडलाइन है, जैसे हमारा अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेट में हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास में इतनी स्कूल्स है, इतनी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसको हम पहले तो एजुकेशन के लिए हम कैसे उसको बिल्डअप करें, कैसे उनकी बेसिक इंफ्रा, चाहे वो एफटीपी मॉडल हो गया, डिजिटल कंटेंट हो गया, टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई, साथ में बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई, उसको आगे लेके जाते हैं तो हम एक ओरिएंटेशन दे पेरेंट्स को भी। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का ओरिएंटेशन नहीं होता है, उस वजह से कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। सही टाइम में सही सपोर्ट होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम एक विजन लेके जाएं कि हमारा स्टेट है, जैसे अगर हम नीति आयोग की बात करें तो उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाई है, उनको चिन्हित किया, उसके अकॉर्डिंग अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली हम एक स्टेट के लिए हम प्लान करें कि एजुकेशन का अगर सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है तो क्या क्या कंपोनेंट पे इंटेंसिवली काम करना है। और साथ में जैसे हम न्यूट्रिशन की बात करें, अगर हम 1 रुपये न्यूट्रिशन पे भी खर्च करते हैं तो आने वाले टाइम में वो 20 टाइम्स वो रिटर्न देगा। वुमेन्स अगर हम बात करें, 1000 डे केयर वुमेन की और चाइल्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम यही हम सोचेंगे कि हमारे सिर्फ न्यूट्रिशन गार्डनिंग करनी है या हमें वुमेन्स को एक न्यूट्रिशन किट देनी है, तो उससे ये जो ऑब्जेक्टिव है वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। हमें प्लान करना पड़ेगा कि जो पूरा 3 साल का जो साइकिल है, प्रेगनेंसी से लेके बच्चे के 2 साल तक, उसको कैसे हम एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, साथ में एक अवेयरनेस कि कैसे ग्रीन वेजिटेबल, वो सारी चीजें, तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है माल न्यूट्रिशन का एड्रेस करने का, वो नहीं हो पाएगा। काफ़ी जगह जैसे हम विजिट करते हैं, कई बार हमें पता पड़ता है कि हमारे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट आरोग्य केंद्र है
जहाँ पे लेबर रूम है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। जो प्लेसेंटा होता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी कुछ जो चैलेंजेस हैं, हम इस तरह से प्लान करें कि इंटीग्रेटेड मैनर में इन सबको हम रिजोल्व कर पाएँ। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें, सीएसआर काफ़ी फोकस हो गया है पहले के टाइम से, काफ़ी अवेयर भी हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया में अगर मैं बोलूँगा कि जो डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हुआ है रूरल डेवलपमेंट सेगमेंट में या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे नीड थी, सीएसआर का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन साथ में अगर सीएसआर जो एजेंसी है एनजीओ को सपोर्ट करे, उन पे ट्रस्ट करे कि उनके जो आइडियाज़ है वो एक चेंज ला सकते हैं, डिस्कस करें, उससे काफ़ी बदलाव आएगा और जो बदलाव होगा वो रिमार्केबल रहेगा। और उसका जो है कहते हैं ना कि काम बोलना चाहिए, वर्क शुड स्पीक। और हम भी ये बिलीव करते हैं पंक कि हमारा काम ही हमारी पहचान, इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हम बहुत कम विजिबल होते हैं प्लेटफॉर्म पे। हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं उनकी वॉइस ही हमारी वॉइस है। तो मैम आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो पंक के 7 पिलर्स है वो बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनिशिएट करने के लिए। और उन सब पिलर्स पे अगर हम काम करते हैं तो ये होगा कि हमारा जितने भी जो ग्रे एरियाज है उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो भी चैलेंज है उनको हम एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब क्रिएशन, फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लीडर्स हम प्रमोट कर सकते हैं। जी मैम। ये ठीक ही आपने अच्छी बात कही है। मैं ये तो जानती हूँ कि instead of projects being a checkbox and symbolic, it should become sustainable. और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत कुछ है जो आपने काफी सारा हमें बताया है। कोलैबोरेशन चाहिए, वो व्यू चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व के बिना कुछ होता नहीं है। सबको लगना चाहिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमें इसको सक्सेसफुल करना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो जैसे हम किसी माता पिता से पूछें कि आप कौन से बच्चे को सबसे प्यार करते हैं या क्या आपका कौन सा बच्चा आपको प्यारा है, तो वो बोलेंगे सब, बिकॉज दे आर ऑल योर प्रोजेक्ट्स। बट किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए ब्रीफली जो बहुत इनोवेटिव था, कोई भी एक प्रोजेक्ट जो काफी इनोवेटिव था। ये नहीं है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बट एक कुछ जो आपके ध्यान में आता है। बिल्कुल जी। ये मैम एक प्रोजेक्ट है हमारा जो यूपी में हम कर रहे हैं, यूपी में और राजस्थान में, जिसमें क्या है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लगभग 61 विलेजेस में काम कर रहे हैं, राजस्थान में और यूपी में। जैसे राजस्थान में बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ एक एरिया है, वहाँ पे 1000 हेक्टेयर एरिया पे काम कर रहे हैं। और सिमिलरली प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे भी 1000 हेक्टेयर पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फार्मर्स परेशान थे क्योंकि उनका प्रैक्टिस थी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की। हमें टाइम लगा तो उनको ट्रिगर करने के लिए, उनको समझाने के लिए, वो अपना फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कैसे उन्हीं का जो लैंड है उस वहाँ पे हम कंपोस्ट कैसे हम कर सकते हैं, कैसे अमृत पानी, अमृत खाद, ग्रोथ प्रमोटर, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड कैसे हम बना सकते हैं और उसको कैसे हम उसके फील्ड में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर काफ़ी चैलेंजिंग रहा हमारा, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, अगर हमें लॉन्ग टर्म जाना है, अगर हमें इंडियन एग्रीकल्चर को बचाना है तो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग
पे जाना पड़ेगा। जो हमारा कोर था, उससे क्या होगा, हमारी सॉइल फर्टिलिटी है जो इम्प्रूव होगी, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। साथ में क्या होगा, जो हमारे सीडलिंग है उसका ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होगा, फ्लोरिंग स्टेज, फ्रूटनिंग, वो सारा अच्छा होगा। और फार्मर्स को कम इनपुट में अच्छा एक प्रोडक्शन मिल पाएगा जो सस्टेनेबल होगा। और मेन इंपॉर्टेंट जरूरी है कि एज ए कंज्यूमर, अगर हम हमारी बातें कर रहे हैं, आज अगर हम देखते हैं कि 30 के बाद या 40 के बाद सबको शुगर हो गया है, बीपी बढ़ गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है वो केमिकल फूड आता है, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है हमें। तो उससे क्या होगा, एनी हाउ वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे एक इकोसिस्टम को हैम्पर कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने ना कि फार्मर्स का बिहेवियर चेंज किया, प्रैक्टिस इंप्रूव की, जो सस्टेनेबल था, क्योंकि केमिकल बाहर से खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपने गोबर खाद से काफ़ी ऐसी चीज़ें जो बन सकती है, नीम जो है, नीम सीड से काफ़ी पेस्टिसाइड वो बन सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड, ये सब करके वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है। इससे लागत भी कम हो रही है और साथ में जो रिटर्न आ रहा है वो सस्टेनेबल है। इससे क्या हुआ मैम, इससे हमने उनके एक एफपीओ भी बनाए हैं, दोनों जगह पे एफपीओ बने हैं। फार्मर्स जो है अब ग्रुप में डिस्कस करते हैं। उनका जो पहले उनको मार्केट में बेचने के लिए दिक्कत होती थी, आजकल ये होता है कि 2 सर्टिफिकेट हो गए, उनका जो भी प्रोड्यूस होता है वो आसपास के गांव वाले जो फार्मर है वो खाने के लिए खरीद लेते हैं। उनको जो पहले रेट मिलती थी, जो एमएसपी है, उससे ज़्यादा रेट पे वो बेच देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि उनको भी एक मोटिवेशन मिला, जो जिनको अच्छा खाने का शौक है उनको अच्छा खाना मिला। और ये मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इंडिया जो है गांव में निवास करता है, गांव में रहता है, और हमारे गांव जब तक हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, तो सिटी को हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिटी की अपनी लिमिटेशन है। नो डाउट डेवलपमेंट हमें जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट शुड बी बैलेंस, और ये हमें ऐसी प्रैक्टिस से ही इंश्योर करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। So agriculture and sustainability are closely related because yes, agriculture is indeed the backbone of India. अगर हम अभी फ्यूचर की बात करें तो पंख के लिए एक दो ऐसे क्या क्रिटिकल गोल्स हैं जो आपके दिमाग में हैं, और आपको एज एन एनजीओ कॉर्पोरेट विंग्स का क्या कोलैबोरेशन या क्या सहायता उनके तरफ से आपको चाहिए, या क्या विजन में बदलाव चाहिए जिससे ऐसे गोल्स, आपके क्रिटिकल गोल्स सक्सेसफुल हों? मैम ये एक अच्छा पॉइंट है मैम, जो ने कि पंख के लिए जितने भी जो एनजीओ है उनको एक विजन ओरिएंटेड काम करने के लिए प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर हम बात करें मैम सीएसआर जो लीडर्स है, अगर मैम वो एनजीओ को सपोर्ट करे एक इंटीग्रेटेड मॉडल्स पे, जिससे क्या होगा कि मैम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के साथ में रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट होगा मैम एक पूरे इकोसिस्टम को जनरेट करेगा जो सेल्फ ड्रिवन रहेगा। अगर सीएसआर में हम ये चीजें इंकलकेट कर पाते हैं, जो काफी जगह हो रही है, लेकिन ये होता है कई बार हमारा लिमिटेशन होता है कि हमें 6 महीने का प्रोजेक्ट मिलता है, 1 साल का प्रोजेक्ट मिलता है, जिसमें 1 साल में कम्युनिटी में रेपो बिल्ड करने में निकल जाता है, और जब रेपो बिल्ड होता है तब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो एटलीस्ट हमारे पास अगर 3 साल, 5 साल, 10 साल के विजन के साथ में प्रोजेक्ट होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सॉल्यूशंस ड्रिवन अप्रोच के साथ में हम काम कर सकते हैं, और सस्टेनेबल होगा। मतलब वहाँ पे इंस्टीट्यूशन को हम डेवलप करेंगे। जैसे मैम एग्जांपल है, अभी हम काफ़ी एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं, लगभग हमने पिछले 4 साल में 300 से ज़्यादा एफपीओ बनाए हैं। अगर हम देखिए मैम, हमारे लगभग 20 से 30% एफपीओ ऐसे हैं जिनका जो टर्नओवर है 50 लाख से ज़्यादा है। काफ़ी एफपीओ है जिनका 4-4 करोड़ रुपए का भी टर्नओवर है। वो जब भी हो पाया जब उनके साथ में रेगुलर उनके मेंटरिंग सपोर्ट के लिए रहे, उनको गाइड किया, जहां उनको चैलेंजेस आ रहा है, चाहे वो कंप्लायंस का इशू हो, चाहे उनका जो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनमें आपस में कैसे कोहेजन डेवलप करना है, कैसे उनको प्लानिंग करवानी है कि बिजनेस डेवलप कैसे करना है, कैसे फार्मर्स का जो इशू था कि उनको अगर सिंगल फार्मर मंडी तक जाएगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी उठाना पड़ेगा, साथ में मंडी में जाने के बाद में उसको इंतजार भी करना पड़ेगा, और बार्गेनिंग पावर उसकी कम होती है। अगर वो एफपीओ के माध्यम से कनेक्ट होता है तो क्या होगा, सारे जितने भी जो फार्मर्स है एफपीओ में वो देंगे, वो एफपीओ उनके गांव के पास ही होगा या गांव में ही होगा, उसे ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, टाइम बचेगा, एफपीओ डायरेक्ट उनसे बार्गेन कर सकता है, इससे क्या होगा, टाइमली पैसा भी मिलेगा फार्मर्स को। तो ऐसे मॉडल्स पे हमें काम करना पड़ेगा जो 3 ईयर और 5 ईयर की विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। Interesting. Yes, it's a very good thought process, vision, very good. So we have looked at Surendra Kumar as a practitioner, as a leader in CSR implementation. We have learned so many things from your journey and your wonderful organization Punk. I would like to ask you now कि काम के अलावा सुरेंद्र एज अ पर्सन, फ्रॉम द पर्सनल एंगल, आपकी हॉबीज क्या हैं? काम तो आपका पैशन है, बट आपकी हॉबीज क्या हैं? और हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, इफ एवर यू आर नॉट वर्किंग, बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर इन्वॉल्व्ड 24/7. मुझे बात करना बहुत पसंद है, और मेरा हॉबी है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं पे भी अच्छा कुछ चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का क्या प्रोसेस रहा है. मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ. मेरा हॉबी बैडमिंटन है. मैं रेडी होता हूँ बैडमिंटन 1 घंटे डेली बैडमिंटन खेलता हूँ, जितना भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमारी लाइन में क्या होता है मैम, बहुत कुछ चीज़ें होती है. एनजीओ मतलब आपको फाइनेंशियली भी देखना है, मतलब बीडी भी देखनी है आपको जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें प्लानिंग भी देखनी है, टीम को भी गाइड करना है, जो चैलेंजेस उसको भी हैंडल करना है, पैरेलल में ऑडिट भी हो रहा है उनको भी देखना है, प्रोजेक्ट में पैसे नहीं आते हैं या कभी डिले होती है तो टीम की सैलरी भी देखनी है. सारी चीज़ें एक पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को आपको हैंडल करना है. नो डाउट बिना टीम के ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन साथ में जब तक आपका माइंड और बॉडी जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं हैंडल कर पाओगे. तो उसी के लिए मेरा मैम एक प्रयास है कि जब तक मैं हेल्दी रहूँगा जब तक मैं और चीज़ें कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा. तो इसीलिए जल्दी उठो, गेम कोई भी स्पोर्ट, चाहे वो वॉक भी हो चाहे वो गेम हो, तो मैं बैडमिंटन प्रेफर करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, साथ में हाफ एन आवर एक्सरसाइज. और जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया मेरे पे, तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है. मेरे घर वाले बहुत खुश रहते हैं मेरे से, क्योंकि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो उनको अच्छा खाने को मिलता है. नहीं, ये तो बहुत जरूरी है. स्ट्रेस हर प्रोफेशन में होता है. आपके प्रोफेशन में ठीक है अलग लेवल का स्ट्रेस होगा, और स्पोर्ट्स और अपना स्ट्रेस बस्टर्स जो हम खुद डेवलप कर लेते हैं उसको टैकल करने के लिए बहुत अच्छी बात है. वो हमें एक आउटलेट मिलता है कि हमारा काम सफ़र नहीं करे बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस. एंड हमारे जो भी वर्क स्टाफ हैं उनको न पता चले कि आप स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वो फिर ट्रिकल इफेक्ट होता है. आपका स्ट्रेस उन पे जाएगा, वो काम पे जाएगा, आउटपुट खराब होगा. तो बिल्कुल बहुत सही कहा आपने. So before we close, is there one message from you that you will give to the viewers and the listeners who are in this podcast with us today? अगर हमें चेंज लाना है तो बिना सपोर्ट सिस्टम के चेंज नहीं आ सकता है. अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ या आपके सामने मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे भी काफ़ी सपोर्ट सिस्टम रहा है. पेरेंट्स, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन से मैंने पढ़ाई की है, एक्सपोजर, मेरा माइंडसेट. अगर हमें लगता है कि किसी भी एजेंसी को कोई काम दिया जाए विद ट्रस्ट के साथ तो डेफिनेटली में रिजल्ट आता है. पंख ने पिछले 10 साल इन्हीं सब चीज़ों पे काम किया.
कि हम कैसे छोटे छोटे मॉडल, चेंज कोई बड़ा नहीं है, चेंज होना चाहिए एक नीड बेस्ड चेंज होना चाहिए, और छोटे छोटे मॉडल इंटीग्रेटेड मैनर में अगर हम करें एक सपोर्ट सिस्टम के साथ में, जो मैं सोचता हूँ CSR एक बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत इससे डेवलपमेंट भी हो रहा है, काफ़ी मैं बोलूँगा कि जो चेंज हो रहा है वो CSR का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कि अगर हम 3 साल 5 साल के विजन के साथ में एक कोलैबोरेशन करते हैं, तो काफ़ी ऐसे मॉडल हैं जिनको ना कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक रेप्लिकेट भी कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन पे, और जो ऑलरेडी प्रूवन है, क्योंकि हम पिछले 15 साल से बहुत रिमोट कॉर्नर पे, जैसे मैं अपनी बात करूँगा, मैंने छत्तीसगढ़ में भी काम किया है, मैंने मेघालय में भी काम किया है, राजस्थान, बिहार, यूपी, आसाम, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड, उड़ीसा, तो डिफरेंट जो आइडियाज है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट सॉल्यूशंस है। जितनी भी CSR एजेंसी है, अगर वो बिलीव करती है तो डेफिनेटली पंक कैन क्रिएट ए गुड होलिस्टिक मॉडल विच विल लास्ट मोर, एंड रियल में एक ऐसा चेंज लेके आएंगे जो एक सस्टेनेबल, जो हम बात करते हैं कि SDG है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको ट्रिगर करेगा। और हमारे इस पूरे कंसेप्ट के पीछे है कि लिव नो वन बिहाइंड, हमें हर उस बंदे को सपोर्ट करना है जिसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, और इसी से ही हम क्या करेंगे, जितने भी जो डॉट्स हैं, डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करते हुए हम नेशन को बिल्ड कर पाएंगे। और इसीलिए पंक का हमने एक छोटा सा टैगलाइन रखा है, चलो कुछ अच्छा करते हैं, कि जब हम सोचेंगे तो ये अच्छा कर पाएंगे। आज एक मेरी सोच थी, उसकी वजह से हम कम से कम 12 स्टेट में काम कर पा रहे हैं, लगभग 100+ एम्प्लॉय को हम एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, 3 से 4 लाख लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, स्पेशली CSR पार्टनर्स के साथ में, कि वो आगे आके सपोर्ट करें, ताकि हम एक अच्छा, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए। बहुत अच्छी जी। बात कही आपने। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला पंख की जर्नी से, आपकी जर्नी से, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा एनरिचिंग और एंगेजिंग लगा होगा ये कॉन्वर्जेशन। So I thank you very much for Thank you, ma'am. coming on this show. And अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो आपका ईमेल आईडी है, क्या आप किस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? जी मैम, ईमेल आईडी है, मेरा मोबाइल नंबर है। तो वो हम ये पॉडकास्ट में लिंक कर देंगे, तो पीपल जी। कैन कांटेक्ट यू एंड आपसे जुड़ सकते हैं, कुछ भी उनके सवाल हों, या अगर वो कुछ मतलब काम के बारे में आपसे बात करना चाहें, या कुछ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहें, या आपका सपोर्ट लेना चाहें, तो आई एम श्योर दे कैन कनेक्ट विद यू देयर. So viewers, जी। thank you very much for your valuable Thank you. time and connecting with us. And if you want to participate in our show, please feel free to write to us at editcsrtimes@gmail.com, and we will be glad to hear your story and take you on our podcast. So thank Yep. you, Surendra, for joining Thank us you, once ma'am. again. And thank you, dear viewers, for your valuable time. Let's meet Thank you. again. And till we meet again, keep leading with impact. Goodbye. चलो कुछ अच्छा करते हैं मैम। चलो कुछ अच्छा करते हैं. अच्छा करते हैं। Yes. थैंक यू मैम। Thank you.